So, success is never accidental. Let's begin the session with the wonderful topic 7 Secrets of Success. We appreciate your presence in today's session. I'm hoping all is fine with everyone. Prior starting with the session, I would like to introduce to my organization SEMS. SEMS Welfare Foundation is a not-profit organization dedicated to making a positive impact in various sectors such as education, social welfare, women empowerment, skill development, and entrepreneurship, livelihood generation and employability, health and research, culture, international cooperation, sports, environment protection, and other similar fields. Our mission is to foster healthy lifestyles, thriving communities, and robust businesses by freeing our volunteer members from the burden of day to day details. We enable them to focus their energy and efforts on achieving long term goals. I would like to welcome Ms. Pooja Vyas, the speaker for today's international webinar. I, Biswas, on behalf of SIMS Welfare Foundation, would like to give a brief introduction of our speaker. Pooja Vyas is a business navigator and a life growth coach. She is qualified trainer from London. She is Guinness World Record holder. She has been awarded by more than 1,000 organizations alongside PM Narendra Modi. She runs an NGO for human empowerment named Sampurna Vikas Trust. She is multitasking life and business growth coach. I, Biswas, on behalf of the SIMS Welfare Foundation, would like to give my heartiest welcome to Ms. Pooja Vyas with a huge round of applause for joining us. Your presence has added to the significance of this event, and we genuinely honored to have you here. So, how are you? First and foremost, thank you so much, Vishwas. Thank you so much, the organization itself, for giving me a chance to talk about something ये एक ऐसा subject है. Being a trainer for around 20 years, the most common question which has been asked to me is how to get success. If I start from the word success, the game starts from the word success. Success is the outcome. A meaning of outcome is something which is after the process. हम process जानना नहीं चाहते. We want to know the output straight. जितने भी लोगों से जब भी soft skill, personality development, self growth, life growth, business coaching, relationship coaching, कोई भी content की बात होती है, the most common requirement of any human is success. How many of you want success? शो मी योर हैंड. आप में से कितने लोगों को सक्सेस चाहिए? राइट डाउन समथिंग. रनित स्माइल नहीं, सक्सेस चाहिए. I don't हाउ know, मेनी ऑफ man. यू? यू डोंट नो. हाउ मेनी ऑफ यू वांट सक्सेस? ऑल ऑफ यू. वंडरफुल. सो जिन्होंने अपना हाथ ऊपर किया है, all of you want success. Now, if we start communicating about success, then it is like starting from a root. Success is a calculation of all your 7 area of life. If I want to feel success or if I want to get success, या मुझे सक्सेस होना है या मैं सक्सेसफुल हूँ, मुझे 7 areas को डिफाइन करना पड़ेगा. लेट मी टेल यू विच आर दो 7 area. पहले मैं आपको कम्युनिकेट कर लेती हूँ, उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस है या पर्टिकुलर कोई इश्यू है, हम उस पे बात करेंगे. सो आर यू रेडी? ऑल ऑफ यू आर रेडी? यस और नो? सो भी थम, आप थम दिखाइए मुझे, जस्ट वेव मी. यस, वेरी नाइस. तो बाकी के लोगों ने अपने कैमरास को ऑफ रखा है एंड दे हैव इवन केप्ट देयर फेसेस आल्सो. नो प्रॉब्लम. चल लेट अस स्टार्ट विद दिस. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सक्सेस का सबसे बड़ा जो सीक्रेट है इज नो योर सेल्फ. इतने सारे लोग हैं जिनको पूरी दुनिया के बारे में पता है, आज क्या हुआ, actor, Bollywood actors, everything, sports, all kind of informations are there, but they don't know about their own self. तो सक्सेस का सबसे पहला जो रूल है, थंब रूल जिसको कहते हैं, is know yourself. You should have your own SWOT. SWOT का मतलब है आपको पहले पता होना चाहिए what are your analysis. आपको कब गुस्सा आता है, आपकी स्ट्रेंथ, आपके वीकनेसेस, आपकी स्पेशलिटी. यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ. जब तक आपको अपने बारे में पता नहीं है, सफलता आपसे माइल्स अवे रहेगी. बिकॉज सक्सेस को रीजन चाहिए आपके पास आने का, आपसे कनेक्ट करने का. तो वो रीजन
उसको तभी मिलेगा जब आप उसके साथ कनेक्ट करोगे. सो फर्स्ट, होल्ड ऑन, लेट मी चेक. आवाज आ रही है आप सबको मेरी? एम आई Yes, ma'am. ऑडिबल? It's clear. Yes, ma'am. सी, सो सबसे, Yes, हाँ, ma'am. आवाज आ रही है. या, सो द फर्स्ट रूल इज टू नो योर सेल्फ. बहुत से लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है खुद के बारे में, और देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको एंड तक ये पता नहीं होता कि किनसे और क्या मेरी स्ट्रेंथ है. दे डोंट नो. उनको पता ही नहीं होता कि ये लोग कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं. जैसे आपको सक्सेस चाहिए. हाय मिस चौहान, दिख रहे हो आप अभी? सो इफ यू वांट सक्सेस, बट आपकी ही लिमिटेशंस है जो आपको पता नहीं है, जो आपको सक्सेस से दूर रख रही है. इफ यू डू नॉट नो द रीजन यू फील दैट आई एम नॉट सक्सेसफुल, सो द फर्स्ट रूल इज टुवर्ड सक्सेस इज know yourself. How do we know ourselves? Let me ask you a question. We know ourselves through surroundings. Some of you know through friends, some of you know through relatives, some of you know through other aspect of your life. But do you really know yourself? So the first and foremost question towards success is know yourself. When you are done with this, like when at the certain age you know the area that these are my weaknesses, these are my strengths, and these are my threats, and these are the outcome which I can plan in my life. Opportunity, threats, weaknesses, strength, everything comes with one word, which is called awareness about yourself. I meet lots of entrepreneurs in a day. They have got a case study about their troubles, problems, everything. They have got a diary filled with lots of reasons about not being successful. But when I ask them a single question about themselves, they have nothing to talk about. So the first point I would like to put in front of you is know yourself. Let's not talk about the world, my dear friends. It is you who will change your world. It is you who will write your destiny. It is you who will create the history. So the first and foremost, the most important point in the terms of self development is know yourself. When you know yourself, you start on a second ladder of your life, which is called, very important ladder, which is called skill development. If I want to reach to the Everest, I have to keep on talking about I want to go to Everest, I want to climb Mount Everest, I want to reach there, I really want to be there. My dear friends, when you know, give you an example of a very renowned doctor I met. I met a very renowned doctor who was dealing with a very unique subject which is called cardiology. The doctor was up to the mark, a very, very famous, a fabulous doctor with hands. Hands, I mean operations, surgeries. His ratio of any surgery was almost 99%. Means if he is dealing with 100 clients, 99 will be recovered. Hardly one case will be in a trouble. I met this doctor on a very renowned platform, which is called, a platform for doctors and communicators to be with. What happened when I met him over there? My frame for a doctor, my mindset to have a look at the doctor could not satisfy. जैसे ही डॉक्टर साहब को ये बोला गया that please come on the stage and share two lines, he did not get up, he did not react, he did not speak. तो डॉक्टर ने एकेडमिकली अपने आप को बहुत अच्छा रिनाउंड बना दिया था, बट स्किल्स, द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, presentation skill, public speaking, how to represent yourself were missing. So, a very good doctor turned into a very ordinary human due to poor skill development. So, success का जो दूसरा ladder है is about developing skills. अब आपको पता है that you have got anger issue, you are lazy, you don't know what to do, आपको attitudes की problem है, आपके skills सही नहीं है, you are not comfortable with your own goal setting. If you know this, तो सबसे पहले आपको कर लेना है skill development. If I want to go to Everest, I have to make sure that I plan my physique, I plan my mind, and I prepare my soul
to take this work ahead. So first step is knowing yourself. Second step is once you know, develop those skills. You want everything ready made. The life is not a Maggie, my dear friend. 2 minutes and I am there. It's not Maggie. It could be advertisement. It could be never a life. So जितने भी लोग ये 2 मिनट की सक्सेस को ढूंढ रहे हैं, सबसे बड़ी गलती आप यहाँ कर रहे हैं. सक्सेस and the area which you put your hard work is a journey. So second level पे आपको करना है अपना skill development. Number 3, when you start or when you think developing your skill, एक चीज है जो आपको बहुत परेशान है एंड वो है आप खुद. योर बॉडी, योर माइंड, योर हेल्थ, योर फिटनेस विल नॉट सपोर्ट. आप बहुत कुछ सोचेंगे, कल मुझे ये करना है, परसों मुझे ये करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, यहाँ पहुंचना है, बट तीसरे लेवल पे आके आप थके हारे बेचारे वापिस जीरो पे आ जाओ. सो थर्ड लेडर ये कहता है प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तब जाके आपकी ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस सक्सेस के लिए रेडी हो जाए. देयर वाज एन इंटरव्यू ऑफ मलाइका अरोरा. एक इंटरव्यू था मलाइका अरोरा. डू यू नो हर? शो मी योर हैंड. कितने लोग जानते हैं हु इज मलाइका अरोरा? वेरी नाइस. यू नो चौहान. हु एल्स नोज मलाइका अरोरा? कौन जानता है? और शो मी योर हैंड. और कौन जानता है? आकांक्षा आप भी जानते हैं. अच्छा, और कौन जानता है? यस. सो व्हाट, एक बार उनसे पूछा गया दैट you are about to touch 50, you are about to touch 50, still everybody keeps on talking about you. You are being chased by peps, you are being clicked by ordinary people. Why this? And the answer she gave was, I work for it, I earn this. So the meaning of work and earn is what exactly you do to develop your own skills physically and मेंटल. सो थर्ड लेवल पे आके आपको हमेशा याद रखना है प्रिपेयर योर सेल्फ टुवर्ड्स योर गोल. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जो लोग भूल जाते हैं एंड आई रियली वांट यू टू रिमेम्बर दैट इज थर्ड स्टेज. नंबर 1, नो योर सेल्फ. नंबर 2, स्टार्ट planning skill development. Number 3, physical and mental fitness. If you want to study 12 hours, you have to run half an hour. If you want to work 12 hours, then you have to exercise 30 minutes. These are the basic rules to be fit and fine emotionally, mental. Step number 4, when you are fit enough, और आपको जो परेशानी होने वाली है, is your relationship. The moment you finish your school, हम जैसे ही हमारा स्कूल 10th standard, 12th standard फिनिश करते हैं या शुरू करते हैं, our priorities are different. Peer pressure, relationship issues, breakups, hookup, parental disputes, रिलेटिव्स, एक सर्कल ड्रॉ हो जाता है हमारे आसपास. और इंडिया की किसी भी स्कूल में रिलेशनशिप हैंडलिंग का कोई भी कोर्स नहीं. यू आर नॉट बीइंग टॉट हाउ टू लुक आफ्टर योर रिलेशन. हम एक ऐसे नेट और ट्रैप में फंस जाते हैं कि हमारे पास स्किल है, वी हैव गॉट फिटनेस, वी आर अवेयर अबाउट आवर गोल्स, स्टिल वी कैन नॉट chase them because you are not learning about your रिलेशनशिप्स. कुछ लोगों को पेरेंटल, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई बॉस एम्प्लॉय, कोई रिलेटिव्स में फंस गया, कोई दोस्तों में रुक गया और आपके गोल्स पीछे रह गए. दूर दूर तक आप उनको देख नहीं पाते. देन हाउ विल यू बी सक्सेस? सो वेरी इंपॉर्टेंट योर रिलेशन. अगर आपकी जिंदगी में कोई भी रिलेशनशिप का इश्यू है, फॉरगेट अबाउट सक्सेस माइंड. फर्स्ट यू शुड एड्रेस. मेरे पास जितने भी लोग लाइफ कोचिंग के लिए आते हैं या रिलेशनशिप कोचिंग के लिए या बिजनेस कोचिंग, उन सबका एक कनेक्शन, अंडरस्टैंड द कनेक्शन. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल in your relationship, you cannot perform in your business. If you are not performing in your business, you cannot develop your skill. If you are not developed in your skill, you cannot be successful. This is all hooked. ये सब hook में चलता है. So make sure you learn relationship skills. अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई रिलेशनशिप इश्यूज चल रही है तो हम जैसे लोगों की हेल्प से उससे बाहर आ जाए. जो भी इश्यू है उसको सॉर्ट आउट. ये आपको सक्सेस से बहुत दूर ले जाए. अ की वर्ड टू इजीएस्ट सक्सेस इज सॉफ्ट एंड काम रिलेशनशिप, जो बहुत जरूरी हो. रिलेशनशिप इश्यू
इतना नॉन एड्रेस सब्जेक्ट है, हम इस पे बात नहीं करना चाहते। वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट। हमें इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे जो अच्छा अच्छा दिख रहा है, वही हमारा ड्रीम है। आपको लगता है कि पूरी दुनिया के हस्बैंड बीवी के चरणों में बैठ के उसकी सेवा कर रहे हैं, सब दोस्त अभी गोवा में जाके चिल आउट कर रहे हैं, द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल, और आप उसी की सर्च में रहते हो पूरा दिन। एक ड्रीम वर्ल्ड बन गया है, आप जहाँ आपके जो सही रिश्ते, उसकी जो ट्रबल्स है वो आप देख। सो मेक श्योर एड्रेस योर इश्यूज बाय बुक। और जब आप यहाँ तक आ जाते तो पांचवा स्टेप होता है प्लान योर करियर। सफलता तो तब आएगी जब आपके पास कोई प्लान होगा, मॉडस ऑपरेंडी होगा, कोई सिस्टम होगी, कोई रास्ता होगा, कोई पाथ होगा। सक्सेस 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 चाहिए, सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, बट कैसे, हाउ डू यू वांट इट। तो पांचवे तक आते आते आप सोच लेना है अबाउट योर करियर गोल्स एंड योर लाइफ पाथ। रिसेंटली आई केम अक्रॉस विथ एक बहुत ही बढ़िया एंटरप्रेन्योर सर, 42 इयर्स के थे सर, जिनसे मैं मिली। 42 इयर्स के सर यहाँ पे आके मुझे ऐसा कह रहे हैं मेरी ऑफिस में, दैट आई एम नॉट हैप्पी। इमेजिन a 42-year-old man who has traveled to come to me in a Mercedes, well dressed, अच्छे से इंसान जिनका सब अच्छा है, एवरीथिंग ही डज, और वो मुझे अचानक से ऐसा कहते हैं आई एम नॉट हैप्पी। हाउ डू यू टेक इट? आपको क्या लगता है कि इनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मैरिड, a father of 2 kids, well settled, financially stable, but still not happy. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है is my पांचवा लेडर, प्लान योर करियर। ट्राई एंड प्लान। जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना प्लानिंग नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने अपनी करियर को चुना है। दे हैव पिक्ड, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड। वंस अगेन, पिक, डोंट एक्सेप्ट। देखिए, अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं और जो मिल रहा है उससे बात कर रहे हैं, वो दोस्त नहीं हो। जिनको मिलने हम अपने घर से निकलते हैं कि इनसे मिलने जा रहा हूँ, वो अपने दोस्त। सो द पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन इज प्लान योर करियर। आप सोचिए क्या बनना है, थोड़ा व्हाट डू यू वांट टू बी, वेयर डू यू वांट टू बी सीन, आपके स्किल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आपने करियर के लिए प्लान नहीं किया तो वो रैंडम रहेगी, रैंडम करियर, एक रैंडम लाइफ आपकी हो जाएगी। जैसे आपने पढ़ाई खत्म की, पेरेंट्स ने आपको शादी के लिए बोला, पहली जॉब लग गई, जॉब में आपने एक विशियस सर्कल, और जब आप 40s में आते हो ये सर्कल आपको दिखना शुरू होता है। उन सर के साथ जब हमने लाइफ कोचिंग शुरू किया, मैंने उन सर का, तब मुझे ये सीक्रेट पता चला दैट द जेंटलमैन हैज अ ट्रबल विथ हिज इनर हैप्पीनेस। अगर मैं 6 घंटा, इसको प्रॉपर, अगर मैं 6 घंटा ऑफिस में बैठती हूँ, जो करियर मुझे अच्छी नहीं लग रही, हाउ विल आई कीप माई सेल्फ हैप्पी? सो द पॉइंट इज प्लान योर करियर। कभी कभी पैसे आएंगे माय डियर फ्रेंड, बट वो सेटिस्फेक्शन, वो मजा, वो आप जो ढूंढ रहे हो वो नहीं आए। सो पांचवे लेवल पे आता है प्लान योर करियर। रैंडम अगर आप चले तो लाइफ विल बी रैंडम। देखो, जो मिल रहा है कौन खाता है, आपको पता ही नहीं। जो मिलेगा वो खाएंगे, वो लाइफ किसकी? डू वी लिव दैट लाइफ कि मैं सुबह उठूंगी, आज मुझे जो मिलेगा मैं खा लूंगी, दिन निकल जाए? वी डोंट डू दैट। वी प्लान आवर मील, वी पिक आवर फूड, वी पिक आवर क्रॉकरी, वी पिक आवर टेस्ट। तब आपको वो भोजन खाने का मजा, एक्साइटमेंट। सेम इज विथ करियर। सिर्फ पैसे इज नॉट अ सॉल्यूशन। पैसों के साथ जो आपको चाहिए सेटिस्फेक्शन, मजा, वो जो डोपामाइन आपका छूटना चाहिए, is only through the right career path. So career is very important. जो आपका पांचवे लेवल पे रहे। Am I audible? Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes or no? Am I audible? Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes, sir. मानवदीप? Yes. Yes, sir. तो सबसे पहले शबा, यस, ओके। हमने बेसिक 5 चीजों की बात की, पहले हम उसको ब्रीफ करेंगे फॉर योर ब्रेन। नंबर 1, वील स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ। मैं कौन हूँ, व्हाट आई नीड टू चेंज, मुझे अपने स्किल्स में क्या चेंजेस लाने हैं। नंबर 3 क्या रहा? नंबर 3, हु कैन राइट? नंबर 3 क्या देखा? हु नोज नंबर 3? Personal development. हु नोज नंबर 3? राइट इट डाउन फॉर मी, कीपैड ओपन कीजिए। नंबर 3 Prepare mentally, physically, emotionally. Prepare yourself mentally, physically, and emotionally Very towards good. goal. Towards goal. The third was all about your overall
fitness. Very nice, wonderful. What was fourth? When you are fit enough, your relationship, चौथे स्टेप पे हमने क्या किया? रिलेशनशिप. वंडरफुल शबा. चौथे स्टेप पे आपको रेडी हो जाना है रिलेशनशिप को लेके, और पांचवे स्टेप पे आपको करना है प्लान आपका करियर. career. हम क्या करते हैं? 16 इयर्स, 15-16 साल हो गए, किसी ने बोला डॉक्टर बनेंगे, कोई बोला इंजीनियर बनेंगे, कोई बोला ये करेंगे वो करेंगे. वी स्टार्ट. सबसे पहला ऑप्शन दिखा, इसकी सैलरी बहुत अच्छा है, कॉलेज में इंटरव्यू आ गया, लेट्स स्पीक इट. यू डोंट टेक टाइम, यू डोंट प्लान, सो इट इज रैंडम. और रैंडम चीजें आपको कभी भी सफलता नहीं देगी. रैंडम चीजें रैंडम ही होती है, माय डियर फ्रेंड्स. सो make sure you plan your career, you plan your finance. Plan it, my dear friend, that every month I want to make up this much money. जब मैं 25 का हो जाऊंगा, मेरी इतनी इनकम होनी चाहिए. 30 साल पे इतनी, ये गाड़ी, इस तरह का घर, इस तरह के कंफर्ट, इतना सेविंग, ये सब प्लान होना चाहिए. सी, मैं एक छोटा सा आपको स्टोरी कह रही हूँ. बहुत बहुत छोटी सी स्टोरी है कि एक बार एक बंदा भगवान के मंदिर में गया और चिल्ला चिल्ला के वो बोल रहा है, भगवान, हे प्रभु, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? वाई दिस इज विथ मी? क्या हो रहा है? मैं इसका थोड़े, मैं आपके यहाँ रोज आता हूँ, रोज आपके चरण पकड़ता हूँ, रोज आपकी पूजा करता हूँ, रोज रोज रोज, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया, आपने ये नहीं किया. एवरी डे भगवान रोज सुनते थे. एक दिन कंटाला आया भगवान को भी, तो व्हाट इज हैपनिंग, हर रोज आना और हर रोज चिल्ला चिल्ला के मेरे लिए इतना बोलना. सो एक दिन भगवान ने बोला, माय डियर फ्रेंड, तुम रोज आते हो, अपना टाइम देते हो, दूध चढ़ाते हो, इतनी सारी कंप्लेन्स करते हो, बट कभी भी तुमने ये नहीं बताया व्हाट यू वांट. एक्चुअल तुम क्या चाहते हो? जो नहीं है ये मुझे पता है, बट आपको क्या चाहिए? इफ यू कैन नॉट प्लान, इफ यू कैन नॉट आस्क, तो मैं कैसे आपको प्रोवाइड करूं? सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू प्लान. आप अपने ब्रेन को अगर एक रास्ता दोगे, एक पाथ, एक कमांड, तो वो आपको वहां तक जरूर पहुंचाए. लेट्स टॉक अबाउट क्या चाहिए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट क्या नहीं. ये सबको पता है, आपको, मुझे, बट जो ये ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स, वो ये जानना चाहता है आपको चाहिए व्हाट आर यू लुकिंग. सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपकी जिंदगी में इतने एरिया क्लियर हो जाए, आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपके स्किल्स, यू नो, आपके फाइनेंसेस, ये जब आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आ जाएगी, एक ब्यूटीफुल आपका एक फेज बन जाएगा. इमेजिन अ लाइफ जहां आपके पास पूरा स्ट्रक्चर और प्लान रेडी. तब आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप, विच इज कॉल्ड छठा स्टेप. कौन सा हो सकता है? लेट्स गेस. 6 नंबर का स्टेप कौन सा हो सकता है? अब हमें क्या चाहिए जिंदगी? कौन सोचेगा? बोला यस. क्या चाहिए हमें अब? अच्छा, व्हाट डू यू वांट? यस. एक्शन लेना चाहिए. क्या चाहिए? एक्शन लेना चाहिए. आपने जो करियर प्लान किया उसके ऊपर नाउ एक्शन लेना चाहिए. देन और क्या चाहिए? ज्वाइन करना चाहिए वो करियर जो आपने चूज किया. वेरी राइट. देन और ऑप्शन सी. जब आपके पास ये पांचों एरिया का क्लैरिटी रहता है, तब आपकी लाइफ में आता है वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कंपल्सरी, स्पिरिचुअलिटी एंड गिविंग बैक. अगर आपको सफलता को कंप्लीट करना, इफ यू वांट टू टच दी सक्सेस, तो यहाँ पे छठे स्टेप पे आपको ये सीखना है, हाउ डू यू want to develop your spirituality, your soul connection, your आप कौन हो, कहाँ से हो, कौन से धर्म, जाति, ज्ञाति, शहर, गांव, देश, कहाँ से बिलोंग करते हो. यू हैव टू डेवलप who you are. क्योंकि जब तक आप अपने रूट्स को समझोगे नहीं, मजबूत नहीं करोगे, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है. सो कंपल्सरी, हर every successful human has his or her spiritual ritual. से spirituality से मेरा मतलब है खुद की सोल से कमिटमेंट, सोल कमिट. यहाँ आप धर्म, ज्ञाति, ये सब छोड़ दो. स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट बीइंग हु यू आर. आपका पर्पस, आपका गिविंग बैक. व्हाट आर यू गिविंग बैक? क्या दे क्या रहे हो आप
व्हाट आर यू सर्विंग टू द मदर अर्थ? अपने आसपास के लोगों में आप ह्यूमैनिटी को क्या दे रहे हो? व्हाट आर यू गिविंग टू एनिमल्स, नेचर? व्हाट आर यू गिविंग पीपल अराउंड यू? एग्जैक्टली हो क्या रहा? अगर आपको ये पता नहीं दैट व्हाट आर यू सर्विंग बैक, स्पिरिचुअलिटी को आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओ। सो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अवेकन रहना। जैसे कि अगर मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं तो मैं ये करूंगा, इनकी मदद करूंगा, ये करूंगा। कुछ लोगों का इंटरेस्ट रहता है नेचर में, कुछ लोगों का ट्रीज में, कुछ लोगों का एनिमल में, कुछ लोगों का पुअर पीपल में, कुछ लोगों का डिसेबल में, कुछ लोगों का धार्मिक टेम्पल्स बनाने में, कुछ लोगों का योर इंटरेस्ट कुड बी एनीथिंग, बट वॉट डू यू डू फॉर योर सोल? आपके अंदर जो आपकी सोल है उसको भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है। पैसों से वो सेटिस्फाई नहीं, सोल सेटिस्फेक्शन होता है आपके सोल वर्क से, जो आपको छठे लेवल पे शुरू कर देना। सफलता एक फीलिंग है, एक माइंड सेट, एक जोन है। जैसे अगर सिगरेट पीने वाला इंसान, सिर्फ 1.5 मिनट की सिगरेट होती है, 1.5 से 2 मिनट मैक्स। अगर आप कभी भी किसी को देखोगे स्मोकिंग करते हुए, तो वंस ही स्टार्ट सिगारेट, इट हार्डली टेक्स 2 to 5 मिनट्स, और अराउंड उसके 10 या 5 कश लेगा। बट जो जोन उसका माइंड डेवलप करता है वो बहुत वाइड होता है, वाइड, बहुत लंबा और बहुत डिटेल में होता है। सोल अवेयरनेस ओनली कम्स विद स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है ग्रेटिट्यूड, जो आपके पास है उसके लिए शुक्राना। जब तक आपने शुक्राना, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं किया, सक्सेस रुक जाएगी। बहुत से लोग हैं बीच में रुक जाते, बढ़िया सा जॉब मिलता है निकाल देते हैं बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत अच्छा ससुराल मिलता है, डिवोर्स। बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छा बिजनेस शुरू कर देते हैं, अचानक से सेटबैक। ये कब होता है? जब आप छठा स्टेप गिविंग बैक भूल जाते। सक्सेस इज नॉट ओनली अबाउट टेकिंग, रिसीविंग, इट इज ऑल अबाउट गिविंग। अगर आपने गिवर जोन ओपन नहीं किया तो आपका टेकिंग जोन बाय डिफॉल्ट बंद हो जाता है। इस दुनिया को ऐसे बनाया गया है जहाँ कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं, दिन रात, काला सफेद, हर चीज में शिव शक्ति, अच्छा बुरा, आप कोई भी चीज उठा के देख, कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं। और हमें एक ही कॉम्बिनेशन चलाना है, चाहिए, रिसीव, आई वॉन्ट। तो ये एक चैनल अगर आपने चालू कर दी है तो दूसरी ऑटोमेटिक बंद हो जाए। सो अगर आपको बैलेंसिंग करना है, देन यू हैव टू मेक श्योर प्लान गिवर्स टेंडन, गिविंग। और ये आपको सिखाती है स्पिरिचुअलिटी, खुद की स्पिरिट को समझ के लोगों के लिए काम करना। मैनकाइंड, एनिमल, मदर अर्थ, नेचर, जहाँ पे आपका इंटेलेक्चुअल माइंड यूज नहीं होता वहां आपकी स्पिरिचुअलिटी शुरू है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब बिल्कुल नहीं है मंदिर जाओ, 2 घंटे प्रार्थना करो, ये सब स्पिरिचुअलिटी में नहीं। सोल, हार्ट, आपकी ऑरा, उसके लिए आप जो करो दैट इज स्पिरिचुअल। और ये सब जब हो जाएगा तब आपका लास्ट एंड फाइनल जो डेस्टिनेशन होता है सफलता का इज लेगेसी। सी, क्या दे के जाएंगे, क्या छोड़ के जाएंगे हमारे पीछे, ये भी हमें प्लान कर लेना है सफलता में। वॉट एग्जैक्टली आर यू सपोज टू लीव एज अ टेक अवे फॉर द मैनकाइंड? आप किसके लिए क्या छोड़ के जाओ? सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, ह्यूमंस के लिए, मैनकाइंड की लेगेसी क्या छोड़ के जाओ? ये आपने जब सोच लिया, देन आपका 7 स्टेप क्लैरिटी आ गई। अगर आपको आज ये पता चल जाए कि आप अपनी लेगेसी में क्या छोड़ के जाने वाले हैं, जैसे मुझे पता है कि मैं अपनी लेगेसी में 1 लाख हैप्पी क्लाइंट्स छोड़ के जाने वाले, 1 लाख लोगों की जिंदगी में मैं लाइफ कोचिंग, रिलेशनशिप कोचिंग, बिजनेस कोचिंग कर करके उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने वाली, ये होगी मेरी लेगेसी। ये करके मैं ऊपर जाऊंगी, परमात्मा को मिलूंगी। अगर ये मैंने सोच रखा है तो सफलता के लिए ये मेरा एक लैडर बन गया, एक और स्टेप। जितने भी लोग आपको मोटिवेशनल लेक्चर सुनाते हैं, सफलता की बातें करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि सफलता के 3 पहिए जो नहीं दिखते, विच इज स्पिरिचुअलिटी, लेगेसी, ये दोनों के ऊपर वो खड़ी रहे। आपके पास अगर आज 1 करोड़ रुपया आ जाता, शाम तक एक लॉटरी लग जाती है, और अगर आपके पास सेंस नहीं है कि वो 1 करोड़ रुपये का आप क्या करने वाले हैं, तो कल सुबह वो करोड़ रुपये आपकी लाइफ में
एग्जिट कर देंगे इफ यू डू नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज एंड मल्टीप्लाई। सफलता के लिए आपको आपकी लाइफ के 7 डायमेंशन को ड्रॉ कर देना, हर डायमेंशन को ड्रॉ कर। आपके स्किल्स कितने बाकी है, स्पिरिचुअलिटी आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रेयर, मेडिटेशन, हेल्पिंग अदर्स, यू नो करो, बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत जरूरी, बहुत मतलब बहुत। जितने भी लोगों ने विदाउट स्पिरिचुअलिटी, विदाउट लेगेसी सक्सेस को प्लान किया है, उनका प्लान हमेशा 60% पे ब्लॉक हो जाए। इफ यू वांट टू मेक इट 100%, these 2 factors are very important. So your life is all about you, your relations, your finance and career, and your own फिजिकल फिटनेस। दिस इज हु यू आर। और इसके साथ जो हमने पाइल अप किया इज योर स्पिरिचुअलिटी, योर लेगेसी टुवर्ड्स अदर्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपकी खुद से पहचान। अगर आपको इतना पता है, मार्क माई वर्ड माई डियर फ्रेंड, nobody can stop to be success। लिख लीजिए आज की डेट, सक्सेस इज अ projection, success is a plan, success is a blueprint, success is a film जो आपको बनानी है और उसमें आपको मल्टी डायमेंशन अटैच करने हैं, तो आपका पिक्चर कलरफुल भी होगा और सुपर हिट भी। एंड दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट 7 स्टेप टुवर्ड। यस और नो? किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो बताइए, एनी क्वेश्चन। Madam, any PPT because Madam, I want to be a PPT person, no PPT। Madam, I want one question to you. समझने से आ जाता। I want one question from you to you that you have said about SWOT analysis. SWOT, SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. The first step is self-awareness. SWOT. So, what have you thought about yourself on this aspect? SWOT. Is it a question? Yeah, I'm asking that what you yourself. Once again, please ask a question। Yes, बोलिए। Everybody has to do the SWOT analysis in the beginning for choosing yourself, your career. What was your SWOT analysis for yourself? See, when it comes to our personality is made up with our circumstances. If you are around people who are positive, you turn as a positive human. If your surroundings are different, you turn as a different human. So unless you don't know who you are a victim of others' opinion. मम्मी ने बोला मेरा बेटा बहुत शर्मीला है, you will start feeling shy. किसी ने बोला आप बहुत गुस्से वाले हैं, you start feeling angry. So the SWOT analysis का मतलब है strength, weaknesses, opportunity and threat. But यहाँ पे हम समझते हैं strength, weaknesses, area to work आप में है क्या। बिकॉज इनबिल्ट आप में कुछ ऐसा रहेगा जो आपका इनबिल्ट क्वालिटी होगा, और वो आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप स्वॉट नहीं करेंगे, सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे। So that's why it is very important not to plan your life on others' opinion. Next question, कोई भी हो तो। Ma'am, actually there is a question in the chat box, See, so I'll read how it out to for know you. about relationship? Wonderful question. Relationship issues जिंदगी का एक वो एरिया है, आपकी और मेरी सबकी, जिसको हम अनसीन करते हैं, अनहर्ड करते हैं, अनसॉल्व करते हैं, और सबसे ज्यादा आपको परेशान वही करता है। सो हमेशा आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप कोच होना चाहिए। जिंदगी में 3 कोच का होना बहुत जरूरी। नंबर 1 लाइफ कोच जो आपको जिंदगी सिखाएगा, नंबर 2 रिलेशनशिप कोच जो आपको रिश्तों सिखाएगा, एंड नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस कोच जो आपको बिजनेस समझाए। जब ये तीनों कोच आपके साथ होंगे तो चौथा कोच आप खुद बन जाओगे, सेल्फ कोच, जो खुद का ध्यान रखता रहेगा पूरा टाइम। सो रिलेशनशिप इश्यू अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई है, सो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी, बट लेट मी टेल यू, जब तक रिलेशनशिप में पीस नहीं होगा, नो सक्सेस कैन टच योर एरिया, मार्क माई वर्ड। नेक्स्ट, सो चौहान आप क्या कीजिए, जो भी है रिलेशनशिप इश्यूज को पहले सॉर्ट आउट करना। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? परनीत, Yes, ma'am. यू अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट? आप समझ Yes, गए ma'am. पूरी बात को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वंडर। सत्यप्रीत, I have a question. बोलिए बोलिए। Yeah, I always be very positive, but sometimes I get very negative thoughts. Even I know that it's wrong, but why am I not able to
think go in a positive way in that time. So this is what is called skill development. You know the area. आपको ये पता है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये आपके साथ चल रहे हैं, और अगर आप उसकी स्किल को डेवलप करते हैं, हाउ टू थिंक पॉजिटिव, हाउ टू बी अ बेटर ह्यूमन, हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन, सो ये रिवर्स हो गया. सो दैट्स व्हाट मैंने सबसे पहले बोला कि पहले खुद को जानना जरूरी है, दुनिया को छोड़ो. डोंट वेस्ट योर टाइम, वो कैसा है, ये कैसी है, वो बहन, ये भाई. लेट्स टॉक अबाउट यू, लेट्स टॉक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट. तो सबसे पहली बात यही है जो हमें समझ. राइट, नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? सो Vishwas, we are about to end. Hello, madam. Sometimes we have some confuse. Okay, questions. not Hello, sometimes, madam. every time. Uh, When you are confused, a human is confused until unless he has not developed his skills. अगर आपको goal setting पता है, if you know what are the importance of attitude, you will never do a mistake of selecting the right career. Skill development, personality development is a major area जहां आपको इन्वेस्टमेंट करना है. टाइम का, पैसों का, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आपको कहीं पे करना है वो है अपने पीछे. सो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन यू शुड प्लान योर डिसीजन. दैट इज द हार्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन. बिना किसी प्लानिंग के एनिमल्स की जिंदगी चल सकती है, इंसानों की नहीं. भगवान ने बोला कि आई गेव यू ब्रेन टू प्लान योर ओन लाइफ, और तुम फिर भी अगर एनिमल्स की तरह ही रहना चाहते हो, आई कांट हेल्प यू. सो हमारे और एनिमल्स के बीच में सिर्फ एक फर्क है, वी हैव ब्रेन्स, वी कैन थिंक, वी कैन प्लान, दे कैन नॉट. सो लेट्स बी ह्यूमन. So, on behalf of the organizing committee, I would like to express my hearty vote of thanks to our excellent speaker, Ms. Pooja Vyas. Today we got the opportunity to listen to the interesting, thought-provoking discussion on 7 secrets of success. The amount of expertise and passion displayed by Ms. Pooja really enhanced our ideas of success. Ms. Pooja Vyas skillfully imparted her knowledge, leaving us with the insightful conclusion and motivational concept. Her interesting views captured our attention and motivated us to learn more. We appreciate the effort put into preparing this enlightening session.